Today, I'm going to speak on a topic called living together in harmony. आज का विषय है कैसे हम एकता से रह सकते हैं. I just felt that the necessity in basically in our homes and in the church, there should be that peace and harmony in our homes and in the church. मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हमारी घरों में और कलीसिया में शांति का वातावरण कैसे हम बनाए रख सकते हैं. So harmony means, harmony means everything is in order. तो एकता का मतलब ये है कि हम हर एक चीज को एक व्यवस्थित रूप में रखें. Harmony, you can say, comes from the musical. In music we say harmony. That a guitar, when it has got 6 strings, and when it is tuned, the strings are tuned to each other. There is a harmony. हम देखते हैं कि ये जो वाक्य है ये संगीत के जो क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं. जैसे गिटार में जो है 6 तार होते हैं और जब वो सामंजस्य में रहते हैं तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर आवाज निकलता है. And an expert guitarist or expert musician, even when one of the strings, the sound is a little bit not tuned, he is not satisfied. हम देखते हैं कि अगर एक कोई श्रेष्ठ गिटारिस्ट है और वो गिटार बजाना चाहता है और अगर उसका एक भी जो तार है अगर वो ट्यून नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगता है. So that is the way that harmony is, and God wants in His Word. It says in 1 Peter chapter 3, verses 8 to 9. प्रभु भी ऐसे ही चाहता है कि हम हमारे जीवन में ऐसा हम महसूस करें जैसे पहला पत्रस 3 अध्याय 8 to 9 और 8वां वचन से 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे. It says, to sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted and humble in spirit, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you are called for this very purpose, that you might inherit a blessing. अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. So we can think of, we talked about a guitar, about having 6 strings. We can think of us as being one of those strings. हम अपने आप के बारे में भी ऐसे सोच सकते हैं कि हम वो गिटार के एक तार हैं. And the members of our family are the other strings. और जो हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो जो हैं वो बाकी जो तार हैं वो हैं. So if I am not tuned properly, then I will be the one who is causing disturbance. तो अगर मुझ में वो एकता नहीं है तो मैं वहाँ एक जो है ऐसा एक मुसीबत खड़ा करूँगा. So I have to see that I am in harmony with God and with the others. तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं देखूं कि मैं दूसरों के साथ एकता में रहूं. So our home should be a place. Our home is one unit which God has established. और हमारा जो घर है वो ऐसा एक जगह है जहाँ प्रभु ने उसे आधारित किया है. Yeah, and our home should be a place of peace, love and unity. और हमारे घर में शांति, प्रेम और एकता होना चाहिए. Similarly, the church is another place where is like a family. इसी तरह कलीसिया में भी ये एक दूसरा परिवार है जहाँ यही माहौल होना चाहिए.
the family of God, the Bible says the body of Christ is also a family. जो यीशु मसीह का शरीर है वो भी परमेश्वर का परिवार है. And that also should be a place of peace, love, and unity. और वहाँ भी शांति, प्रेम और एकता बनाए रखने की जरूरत है. So we have instruction in the Word of God for both our home and in the church to be a place of peace, love, and unity. और दोनों ही जगहों में हम कैसे ऐसे एकता में रह सकते हैं इसके बारे में वचन में हमें जो है आदेश दिया गया है. See, if our mind is set on the Holy Spirit, on the Spirit, then there will be life and peace. That's what Romans 8:6 says. रोमियो 8:6 में कहा गया है कि अगर हमारा मन जो है पवित्र आत्मा पर लगाया गया है तो वहाँ जीवन और शांति होगा. So, but if our mind is set on the flesh, then it brings spiritual death. लेकिन शरीर पर मन लगाएंगे तो मृत्यु ही वहाँ होगा. So, if we are always walking in the Spirit, then our life will be in harmony with God. अगर हम आत्मा पर मन लगाएंगे तो वहाँ एकता होगी. Yeah. See, our flesh wants to be someone great. You know, so we want to be somebody bigger. You know, we want to be some big people. हमारा जो शरीर है वो ये चाहता है कि हम कोई हमारे में वो बड़प्पन है और जिसके कारण हम कुछ बनना चाहते हैं. The disciples of Jesus, you know, they were also discussing who's the greatest among them. तो ऐसे ही हमने देखा कि यीशु के शिष्य भी अपने आप में वो बात कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है. And then when John and James wanted that place very close to Jesus on the throne, then the others got very much upset. तो और हम देखते हैं कि जब जो याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के सिंहासन के पास के जगह जाते थे तो दूसरे जो शिष्य हैं वो उनसे बहुत ही घबरा गए. So that is the nature, that is our nature, that is the nature of our flesh, each one of us. हर एक का जो शरीर का जो सोचना है वो ऐसा ही है. But after they were filled with the Holy Spirit, then they were different people. They were esteeming one another and were working together with one another. लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए उसके बाद वो एक दूसरे को ज़्यादा जो श्रेष्ठता देने लगे. So the important thing in our life is always to walk in the Spirit. ये जो महत्वपूर्ण बात है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा में ही चले. Yeah. So today we will the importance of peace in the Christian life is very important. जो शांति का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. See, we were all people without peace when before Christ. यीशु मसीह को जानने से पहले हम बिना शांति के रहने वाले लोग थे. Our soul was restless, you know. There was no calmness and rest, but we were restless. And then the peace of God came when Jesus Christ came into our life. और हमारा जो प्राण है वो हमेशा शांति में रहती थी. So now, after becoming a believer in Christ, we have to continue with that peace all the time. और यीशु मसीह को जानने के बाद हमें हमेशा उसी ही शांति में बने रखना चाहिए. Colossians 3:15 says, कुलुसियों 3:15 में ऐसे कहा गया है. And let the peace of Christ rule in your hearts, into which you are called in one body, and be thankful. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो. Yeah. So when we do, when we are walking in the day-to-day life, there can be something we do, and then the peace of Christ can be disturbed if we are walking with the Spirit.
जैसे हम ये जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई परिस्थिति आ सकता है जिसके कारण जो शांति है वो हमारे दिल से निकल जाता है. So we must be sure that we set things right by asking forgiveness from God and man, so the peace of Christ can come be ours always. जो भी गड़बड़ी हुई है उसको हमें समाधान करना चाहिए और शांति में दूसरों से माफी और परमेश्वर से माफी मांगकर हमें सब ठीक करना चाहिए. Colossians 3:14 says, and beyond all these, put on love, which is a perfect bond of unity. और कुलुसियों 3:14 में भी ऐसे कहा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो. So, love is one thing which the Bible says God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. वचन में ऐसे कहा गया है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बनाए रहता है वो परमेश्वर में भी बनाए रहता है. So when we think of unity in the home or in the church, if love is missing, then unity will not be there. अगर हमारे परिवार में प्रेम नहीं है तो जो एकता है वो भी नहीं होगा. So, dear brothers and sisters, God has given each one of us, we are all living in different families, and God wants our families to be a place where there is peace, there is love and unity. और जैसे हम अलग अलग परिवार में हैं, प्रभु ये चाहता है कि हम शांति और प्रेम और एकता में जिए. And when there is a peace in the home, then our children will find the blessing. तो जब शांति रहेगी हमारे घरों में तो हमारे बच्चों के ऊपर भी आशीष आएगा. They become secure. They live a secure life. तो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे. Otherwise, they will feel very insecure. नहीं तो वो बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस. They will not feel like being at home. They will feel like going out. उनका मन नहीं घर में नहीं लगेगा और वो चाहेंगे कि वो घर से निकलकर और कहीं चले जाए. Our home should be such that our children would always want to be at home. हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे वो चाहेंगे अपने मन से कि वो घर में आए. But we have a flesh. लेकिन हम में ये शरीर है. And that flesh creates all the problems. वो जो शरीर है वो बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न करता है. The flesh, we have a self will. और हमारी जो स्वयं की इच्छा है, but unless that self will is crucified or the self will is denied, then only we can do the will of God. जब हम अपनी स्वयं की इच्छा को मार देंगे तभी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाएंगे. John chapter 12 verse 24 says, यूहन्ना 12:24 में ऐसे कहा है. Jesus told, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. John 12:24. यूहन्ना 12:24 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेले रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है. So if we are living with our self life and not putting it to death or not denying it, then we remain alone. We don't get fellowship with others. I don't get fellowship with my wife or my children if my self will is not denied. अगर मैं अपनी स्वयं की इच्छा को मार नहीं देता हूँ तो फिर मुझे अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ मैं संगति नहीं रख पाऊंगा. Similarly, in the church, if I don't fall to the ground and die, and my self will is still I want to do whatever I want, and I'm not willing to deny myself, then I don't get fellowship with the others. ऐसे ही कलीसिया में भी अगर मैं अपने ही स्वयं की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ तो मैं दूसरों के साथ मिलकर नहीं रह पाऊंगा. The one who denies himself gets fellowship with so many people. जो भी अपनी स्वयं की इच्छा को मारने के लिए तैयार होता है वो दूसरों के साथ अच्छे संगति में रह सकते.
And so the cross of Jesus Christ is the solution to all our enmity and problems. जो भी हमारे में जो दुश्मनी है उसका हल प्रभु यीशु के क्रूस में हमें मिलता है. The cross of Jesus Christ alone can bring peace in our home and in the church. यीशु मसीह का जो क्रूस है वही हमारे परिवार और हमारे कलीसिया में शांति ला सकता है. Ephesians 2, if you look at Ephesians 2, 14 and 16, a wonderful word about what Jesus has done. इफिसियों 2 का 14 से 16 तक हम देखेंगे कि यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. It says, "For he himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of dividing wall, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, that in himself he might make two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by having it put to death the enmity." क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. See, there were the Jews and there were the Gentiles, the Greeks or the Gentiles, and there were the barbarians and the, there were different groups, and they could not be one. But when Jesus died on the cross, he brought all the groups into one. हम देखते हैं कि उस समय में जो यहूदी थे और जो यूनानी थे और ऐसे अलग अलग समूह थे, लेकिन वो एक साथ मिलकर नहीं रह पाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा वो एक हो गए. That's why as Christians, it doesn't matter if anybody is not a Malayali or a Tamilian or any, even if he's a foreigner. When we are in Christ, we can be one. It doesn't have to be our own people. That has got, Jesus has broken all that. इसीलिए जब हम कलीसिया में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मलयाली हो या तमिलियन हो या ऐसे कोई भी भाषा के लोग, एक ही भाषा के लोग हो, यीशु मसीह ने ये इन सब बातों को खत्म कर दिया है. So the cross, because of the cross of Jesus Christ, unity and peace is possible. यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा एकता और प्रेम संभव हो गया है. So, but we have a responsibility of denying ourselves. लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को मार दें, अपने आप की इच्छा को मार दें. I would like to share one verse. It says, one minute. If you read 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 से 23 तक. Now we are talking about how we can have peace at home and in the church. हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे परिवार में और कलीसिया में शांति हो सकती है. It says in 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 21 से 23 तक. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. Here it says that since Christ has suffered for you, leaving you an example.
So, what he suffered on the cross is not an example for us to follow. यहाँ कहा गया है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, ये जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख सहा, वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं है. What he suffered is written in the next verse. Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. जो दुख का सामना यीशु मसीह ने किया, उसके बारे में 22 और 23 वचन में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था. So this is the example that Jesus wants kept before us, that when he was insulted, when he was humiliated, he did not give back, but he entrusted himself to God. जैसे यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया और किसी को उन्होंने धमकी नहीं दिया, ऐसे ही जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए. This was a suffering that Jesus, what is mentioned here, he suffered for you. When somebody humiliates us, there is no pleasure within us. There is a suffering. जब हमारी निंदा कोई करता है तो हमें चोट पहुंचती है. It may be our life partner may speak something which is hurting. तो हमारे जो सहभागी हैं वो हमसे कुछ कह सकते हैं जिससे हमें चोट पहुंच जाती है. At that time, we must be like Jesus, who will not give you back, but entrust ourselves to God. तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए. But if we also did that, maybe our life partner must have said something, we also do, then the devil has killed 2 birds with 1 stone. तो अगर हम ऐसे कर बैठते हैं तो जो शैतान है उसने एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया. So if one of us who denies ourselves, then we are following in the footsteps of Jesus. तो अगर हम अपने आप को इनकार करेंगे तो हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे. Brother Zach gave an example of a clash where he puts 2 hands like this. When with 2 hands you can make some noise. तो जैसे ब्रदर जैक ने एक उदाहरण दिया कि 2 हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए. When we clap, it requires 2 hands. तो 2 हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए. And then the noise comes. तो तब आवाज निकलती है. But if one of the hands does not engage in the clapping, then there's no sound. लेकिन अगर एक हाथ अपने आप को इनकार करता है तो आवाज नहीं निकलेगी. So even so, in the home between husband and wife, if one of us keeps quiet or does not engage, then there will be there will not be a clash. तो ऐसे ही पति पत्नी में भी अगर एक जो है जो मतभेद है उसमें भाग नहीं लेगा तो वहाँ शांति आ जाती है. Similarly, in the church, the same thing. If 2 brothers engage in a confrontation, if one of them becomes like Jesus and denies himself, then the clash will not be there. तो ऐसे ही अगर 2 भाइयों में कुछ मतभेद है तो अगर एक चुप बैठेगा तो फिर वो आवाज नहीं निकलेगी. The sad thing is that in quite some homes and in quite some churches there is turmoil and clashes. लेकिन कई परिवारों और कलीसियाओं में ऐसा होता है कि वहाँ जो आवाज निकल जाती है. So then we cannot be a testimony to the people. तो हम लोगों के लिए एक उदाहरण या आदर्श नहीं बन पाते. Suppose we are having a home where a lot of turmoil is there, then what can we preach Jesus to others? अगर हमारे घर में ऐसे बहुत मतभेद है तो क्या हम दूसरों को कैसे हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन पाएंगे? There was a brother who said,
if it does not work at home, don't export it. जैसे एक भाई ने कहा कि अगर वो घर में काम नहीं कर रहा है तो हमें उसका निर्यात नहीं करना चाहिए. Similarly, in the church, if there is lot of quarrel and turmoil and all that, then that church is not a testimony, because Jesus said that all men will know we are his disciples because of our love for one another. तो ऐसे ही कलीसिया के बारे में भी यीशु ने कहा कि लोग हमें तभी जान पाएंगे जब हमारे अंदर प्रेम है दूसरों के लिए. So I'd like to leave with you another important verse which says in 2 Corinthians 4:10. और ऐसे ही दूसरा कुरिन्ती 4 चौथा अध्याय और 10वां वचन में लिखा है. It's a wonderful verse. If we really practically know get a revelation and the truth about this verse, it will transform our life. अगर हम एक प्रायोगिक रूप में इसको जान पाएंगे तो हमारे जीवन को ये बदल डालेगा. 2 Corinthians 4:10. दूसरा कुरिन्ती 4 का 10. If I can remember from my mind, it says, therefore, bearing about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus will be manifested. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह में प्रकट हो. So it says, bearing about in our body the dying of Jesus. It's not the death of Jesus on the cross. It's the dying. We heard about him when he was reviled. He did not revile in return. That is the dying of Jesus. तो यहाँ जो मृत्यु के बारे में कहा गया है वो क्रूस पर जो मृत्यु उन्होंने सही उसके बारे में नहीं है, लेकिन जो हमने सुना कि जब वो लोग गाली देते थे वो गाली वापस नहीं देते थे, उसके बारे में कहा गया. And it says, always bearing about in the body the dying of Jesus. Why? That the life of Jesus will be manifested. और ऐसा कहा गया कि हमेशा हम जो है यीशु का जो मृत्यु अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह से प्रकट हो. I would request all of us who are listening today to this verse, 2 Corinthians 4:10, just go to God and say, God, show me what it is. And Lord, and if it becomes a part of our life, there will be a transformation. और मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक जो है परमेश्वर के पास जाएं और उनसे मांगे कि प्रभु मुझे ऐसा प्रकटीकरण दो कि मैं इस वचन को जो दूसरा कुरिन्ती 4 का 10 है उसे मैं समझ पाऊं और अपने जीवन में उसे लागू कर पाऊं, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा. Even in the time of the Apostle Paul, there was quarrels in the church. In Corinthians, 1 Corinthians 1:11 says, जो प्रेरित पौलुस के समय में भी कलीसिया में हम देखते हैं कि मतभेद होते थे. तो यहाँ लिखा गया है पहला कुरिन्ती 1:11 में, For I have been informed concerning you, my brethren, by close people, that there are quarrels among you. क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. So brothers and sisters, this is so much possible, whether in the home or in the church. If it happened in Corinth, it's possible to happen even amongst our midst. But the word of God, if we follow the word of God, we can be prevented from all this. तो हम देखते हैं कि जैसे कुरिन्थ में हुआ ऐसे हमारे भी घरों में और कलीसिया में ये सब हो सकता है, लेकिन अगर हम वचन का पालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. Then if we have that mind to be a servant instead of wanting to be a special person or wanting to be great, then Jesus said to the disciples, the people who are great, they try to lord it over, but you should be a servant, and the one who wants to be first must be the slave of all. तो जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि दुनिया के लोग जो है दूसरों के ऊपर प्रभुता दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए.
लेकिन दास बनकर जो भी पहला स्थान चाहता है उसे जो दास के रूप में दूसरों का सेवा करना चाहिए. So, brothers and sisters, let it be of the prayer of each one of us that our home will be a place of peace, of love and unity, so that our children can have a secure life. तो हमें भी यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जो परिवार है ऐसे एकता और प्रेम और शांति का एक स्थान बन जाए कि हमारे बच्चों पर भी उसका आशीष आए. And then God will be able to bless other families through our lives. तो फिर प्रभु भी हमारे द्वारा दूसरे परिवारों पर आशीष लाएगा. And then our church also should be a place of peace, love and unity. और कलीसिया भी ऐसा एक प्रेम और शांति और एकता का जगह होना चाहिए. So that the people who just come in new can be blessed. कि जो भी हमारे बीच में आते हैं हमारे द्वारा आशीष पाएं. And each one of us have got a responsibility of, as the guitar string is tuned, we have to be tuned to God. तो जैसे वो गिटार का जो तार होता है वो हमेशा ट्यून्ड रहता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के साथ वो ट्यून में रहना चाहिए. May God bless our homes and our church. प्रभु हमारे परिवारों और कलीसिया में आशीष लाए. Amen. Yeah, when I was meditating on the fellowship in the church, और कलीसिया में संगति के इस विषय पर जब मैं मनन कर रहा था, and that very message which is very strongly implementing in all the church of Matthew chapter 18 verse 18 and 19. और एक वचन जो मत्ती अध्याय 18 के वचन 18 में है, जो आजकल कलीसिया में कहा जाता है, जिस पर जोर देकर कहा जाता है. It says that whatever you bind on earth shall be bind in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा. And in the following verses it comes to say that when you two or more agree on earth on regarding that any issues, then whatever you ask in prayer shall be heard in heaven. और उसका अगला वचन 19वां, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी. And so that the very important things with the believers, and especially in the church and the family, is to be in harmony or in agreeing with any issues to prayer. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक विश्वासी के लिए और एक कलीसिया के लिए कि ये कोई भी विषय है जिस पर प्रार्थना करनी है, तो हम संगति में रहकर एक दूसरे के साथ ताल और मेल मिलाप में रहें. But this is the greatest power that I learned from our brother Jack when I was meditating years back. लेकिन मैंने अपने भाई जैक से इस पर मनन करने के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सीखी है. That Satan never wants the unity and harmony in a church or in a family. कि शैतान कभी भी कलीसिया में या किसी परिवार में एक संगति और एक तालमेल को लय को नहीं चाहता. When a family, a husband and wife agrees together or in harmony to each other, when they pray, and that prayer is heard in heaven. कि जैसे एक परिवार में जैसे एक पति और पत्नी आपस में मेल मिलाप से रहकर एक दूसरे के साथ ताल में रहकर किसी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना सुन ली जाती है. And likewise, even in the church, when the leaders and the members agree together on an issue, and when they put that prayer together, they could bind the things what is in heaven when they bind it on earth. वैसे ही जैसे कलीसिया में जो प्राचीन और अगुवे होते हैं और उसके साथ में जो बाकी के जो लोग होते हैं, यदि वो किसी एक बात पर सहमत होकर ताल और मेल मिलाप से रहकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और उसे बांधेंगे, तो जैसे वह स्वर्ग में बंधता है वो पृथ्वी पर भी बंध जाएगा. So the God has given a tremendous power in us to bind the heavenly principalities of powers and of the powers of darkness. तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में जो कुछ आकाश में और अंधकार की शक्तियां उनको बांधने की सामर्थ्य दी है. And this power is given in the church, this power is given in the family. और यह सामर्थ परमेश्वर ने उनके कलीसिया और उनके लोगों के परिवारों के अंदर दी है.
So Satan always take the initiative of breaking down this unity among the husband and wife, among the leaders in the church. इसलिए शैतान इसी कोशिश में लगा रहता है कि वह एक पति पत्नी के बीच के उस संगति और मेल मिलाप को तोड़ दे, या जो कलीसिया के जो अगुवे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके बीच के उस संगति और मेल मिलाप को तोड़ दे. And so this is a very important issue that today I could hear from Brother Matthew. और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे जैसे मैं सुन रहा हूँ भाई मैथ्यू के द्वारा. So the unity and the harmony in the church as well as in the family is a very significant issues among the believer. कि आज के जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया और जो परिवार हैं, उनके बीच में संगति और तालमेल और एक सही धुन में रहना, यह एक विषय बन गया है. Though the members of every believers or the church cannot come in agreement to one another, कि भले ही अलग-अलग जो मसीह में विश्वासी हैं और जो अलग-अलग समूह हैं, वो भले ही एक विषय को लेकर सहमत ना हो सके, but this agreement cannot break up the unity or bring a disharmony in the church. लेकिन यह जो असहमति है, यह कलीसिया की संगति और कलीसिया के उस तालमेल मिलाप को नहीं असर करना है. That's why we find in the Bible with the illustrations of Paul and Barnabas being separated on there being disagreement on an issue. और बाइबल इसी के साथ हमें पौलुस और बरनबास का उदाहरण देती है कि उन दोनों के बीच में किसी विषय के लिए असहमति थी. But later days in the book of Ephesians, when Paul told to the Ephesian and the Corinthian church, लेकिन इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि पौलुस जब इफिसी की कलीसिया और कुरिन्थ की कलीसिया को संदेश देते हैं that to the many elders in the church that they have to be stick together in harmony, otherwise Satan is ready to break down this unity among them. कि वहां पर पौलुस उन्हें चेतावनी देकर कहते हैं कि आप हमेशा इस कोशिश में लगे रहें कि आप एक दूसरे के साथ सहमत और सही तालमेल में मिलाप करके रहें, नहीं तो शैतान आपके बीच के जो एकता और जो संगति है उसको तोड़ देगा. Now we see in our places in our northeastern India, we find many churches getting divided because of these issues that has not been discussed to this day. और जैसे कि हम उत्तर भारत के कई सारे कलीसिया में भी हम आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि कई सारे कलीसियाओं का बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है, क्योंकि वो इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस पर चर्चा तक नहीं होती. Many convention churches, interdenomination churches, one time that was a very mighty used by the Lord in evangelism, are now becoming a smaller and smaller independent churches. और एक समय था कि यह सारी जो कलीसियाएं थी, यह परमेश्वर के नाम के लिए अन्य जाति में सुसमाचार फैलाने के लिए एक अद्भुत रीति से कार्य किया करती थी, लेकिन आज के समय में इनका आकार बहुत ही छोटे से छोटा होकर ये एक व्यक्तिगत और एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला समूह रह गया है. And this is an issue because of the disharmony, disunity among the church leaders. और यह इस कारण हुआ है कि कलीसिया के जो अगुवे हैं उनके आपस के जो तालमेल न होने और सहमत न होने के कारण, मेल न रखने के कारण. And same is the true with the father and the mother, the parents in a family. और कलीसिया के जो परिवार है उन्हीं के साथ में जो माता और पिता है उनके साथ भी यही बात है. And because of that, we see many broken family and children falling into various temptation, drugs addicts, and other unwanted characters in their life. और इसलिए हम देखते हैं कि आजकल के जो परिवारों के जो विश्वासियों के जो जवान है वो ऐसे ऐसे पापों में गिरते हैं जहां पर वो नशा करना, ड्रग्स लेना या अपने आप को अन्य पापों में उलझाना, उनके चरित्र को वो बिगाड़ देते हैं. We can bind the powers of darkness when we stand united in a family, united in a church. और हम शैतान और उसका अंधकार की सामर्थ को तब बांध सकते हैं जब हम एकता में रहकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में खड़े रहते हैं, चाहे हम परिवार में हो या कलीसिया में. So I take this message very seriously, which is a very important things that we are to commit ourselves to be in harmony, to be in unity in the Lord Church, at the same time in the family. तो आज का जो संदेश है मैं इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहता हूं कि जो कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में मेल मिलाप और एकता में रहें, कि चाहे वो हमारा परिवार हो या चाहे वो हमारी कलीसिया हो. Thank you very much. Praise the Lord. आप सभी का धन्यवाद. प्रभु की स्तुति हो. Psalm 133, which speaks about the song the Israelites sing when they go to the temple of Jerusalem once in a year.
और मैं इस शुरुआत वहीं से करूंगा जहां मैंने अधूरा छोड़ दिया था। और हम यहाँ पर वचन संहिता 133 में देखते हैं जहां पर दाऊद और उसके साथी जो थे वो यरूशलेम में वर्ष में एक बार पर्व मनाने के लिए जाते थे। So it says how good and pleasant it is when God's people live together in unity. और यहाँ पर वचन संहिता 133 का पहला वचन कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते। Yeah, then it says about it is just like the oil, the anointing oil flowing from the Aaron's head down to his beard and to his body. और उसका आगे का वचन कहता है कि यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Further, it says it's as beautiful as the dew on the Mount Hermon. और आगे वो कहता है कि यह हार्मोन की उस ओस के समान है। Yeah. So this is this speaks about how beautiful it is when God's people live together. और यह वचन हमसे यह बात कहता है कि यह कितना अद्भुत और सुंदर है जब परमेश्वर के लोग आपस में मेल मिलाप और शांति के साथ में रहते हैं। So in the Old Testament it was not that much possible, but in the new covenant it is possible because, as we heard, because Christ died for us. His life is living in us. It is possible in our life. और पुराने वाचा में यह बात संभव नहीं थी कि हो सके, लेकिन नई वाचा में यह बात हमारे संभव हुई है। And the Bible says that if a corn of wheat does not falls into the ground, it will not remain alone. If it does not fall into the ground, it will remain alone. और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि वो गेहूं का जो दाना यदि जमीन में पड़कर मरता नहीं है तो वो फल नहीं ला सकता। So that is the secret of that. When we fall into the ground and die, as we heard, then tremendous unity will come among us. We will not be alone. We will have fellowship with everyone. और यही वह रहस्य की मुख्य बात है कि यदि हम अपने आप को नीचा करके जैसे उस दाने के समान गिरकर भूमि में मरते नहीं है, तब तक हम अकेले ही रहेंगे, किसी से जुड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार गिरकर मरेंगे तो हम आपस में संगति कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे। This is in fact one of the foundations of the church, because church is a place where people live in unity. और कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग एक साथ एक एकता में रहकर मेल मिलाप में रहते हैं, और कलीसिया के निर्माण के लिए यह बहुत ही मुख्य बात है। Church is a place where all people live in harmony with each other. और कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और शांति से रहते हैं। So only when we understand the beauty of it, we will covet it, we will desire it with all our heart. और कारण यह है कि जब हम इसकी सुंदरता को जान लेंगे और देख लेंगे, तभी हम इसको पाने की चाह रखेंगे और लालसा से इसकी खोज करेंगे। So I want to read one or two qualities of love which is mentioned in 1 Corinthians 13. और मैं प्रेम के गुण के विषय में बात करना चाहता हूँ, जिसका वर्णन 1 कुरिन्ती के अध्याय 13 में किया गया है। It says in 1 Corinthians 13:5, love does not dishonor others. और यहाँ पर लिखा है कि वह अनरीति नहीं चलता। Love actually gives respect to others, honors others. और इसका मतलब है कि जो प्रेम का स्वभाव है वह दूसरों का आदर करता है, दूसरों को आदर मान देता है। So that is one of the quality of the love. In the church, people respect each other, they honor each other, they respect each other. Then tremendous unity will come among us. और कलीसिया ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और शांति में रहते हैं, और हम एक दूसरे को बहुत ही आदर भाव देते हैं, आदर मान से हम एक दूसरे से रहते हैं। I was speaking to one person a few days back who was speaking without any respect. और पिछले बीते दिनों में मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, और मैंने देखा कि वह व्यक्ति जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वह व्यक्ति बिना किसी आदर भाव के मुझसे बात कर रहा है।
So I found, difficult. I could not. It's very difficult to stand there for a few minutes also. और मैंने देखा कि मैं मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा था, संघर्ष के समान था कि मैं वहां खड़े भी नहीं हो पा रहा था कि मैं इसके साथ कैसे मैं बात करूं. So God was speaking to me, so how important it is to speak to others with respect and honor. और तब परमेश्वर ने मुझे बताया और मुझसे कहा कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से आदर भाव देकर, आदर सम्मान के साथ में बातचीत करें प्रेम में. So we are very sensitive to worldly people who speak to us without respect or honor. But in the church also, we are more sensitive. Even if a person has little disrespect or dishonor, we can immediately sense it. और हम इतने तत्पर रहते हैं यह बात के लिए कि संसारिक लोग जो अन्य जाति होते हैं, अविश्वासी, वो यदि बिना किसी आदर भाव के बात करे तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, वह पहचानते हैं. लेकिन यदि ऐसा काम एक विश्वासी करे या कलीसिया का कोई व्यक्ति, तब हम उसके विषय में तो और ज्यादा तत्पर और जागरूक रहते हैं. Then suddenly I understood the value of a church where people, you live in harmony, they honor each other, respect each other. It was just like as beautiful as that, what we read in that Psalm, the oil coming down from Aaron's head, or the dew. Rarely, the dew on Mount Zion is very rarely seen. So that it looks like that, as beautiful as that. और तब मैंने देखा कि कलीसिया का मूल्य कितना बड़ा है और कितना मूल्यवान है यह कलीसिया, कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव में रहकर एक दूसरे को आदर मान से बात करते हैं. और जैसे वह भजन संहिता का वचन कहता है कि उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया और हेमरोन की उस ओस के समान है. So when we value this, we will know the value of church, where that harmony and unity is there. और जब हम इस बात का मूल्य जानेंगे तब हम वास्तव में कलीसिया के उस मूल्य और उसकी महत्वपूर्ण, उसकी आवश्यकता को हम समझ पाएंगे कि मेल मिलाप और शांति कितना महत्वपूर्ण है. Another quality of love which is mentioned in the same verse is it keeps record of no wrongs. और प्रेम का एक और गुण है जिसे हम पहला कुरिन्थियों के उस 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वह बुरा नहीं मानता और वह हिसाब नहीं रखता बुराई का. So people may do a lot of wrongs to us. People may, sometimes speak disrespectfully to us. They may insult us. और हो सकता है कि कई बार लोग हमसे बहुत ही बदतमीजी से बिना आदर भाव के बातचीत करें और हमारा अपमान भी हो जाए. In the church also it can happen. Church we are very sensitive, so even a small word can hurt us. और कलीसिया में भी यह बात होना संभव है क्योंकि कलीसिया में हम और भी ज्यादा संसार की तुलना में ज्यादा जागरूक रहते हैं, तो यह बात ज्यादा संभव है कि छोटी सी बात में भी यह हम देखें. In the world, people always try to remember it. Okay, I will remember it and I will give my right answer when the time comes. That's what the worldly people say. और संसार का ऐसा रीति और संसार के लोगों की ऐसी सोच है कि उसने मुझसे यह बात की, मैं इसे अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा और सही समय आने पे मैं उसका सही जवाब उसे दूंगा. But what Christ can do in our life is he can give us a spirit where we have no interest to consciously keep any record of what people have done to us. लेकिन मसीह हमारे लिए यह एक अद्भुत कार्य कर सकते हैं कि वो हमें ऐसा मन दे, ऐसा दिल देवे कि हम अपने हृदय में ऐसी इच्छा ना रखे कि जहां तक मेरा मन और मेरा दिल जानता है और मैं जागरूक हूँ, मैं ऐसी किसी बुराई जो मेरे साथ है उसको याद ना करूं. See, human brain is a non-erasable memory. You can never forget what happened in the past. और मनुष्य का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वह ऐसा है कि वह कभी भी यादों को मिटा नहीं सकता. उसमें जो यादें रहती हैं वो हमेशा के लिए बस जाती है. But actually you will recollect only what you are serious about, what you are passionate about. लेकिन साथ ही साथ इसका यह भी गुण है कि जिस विषय में आप बहुत ही रुचि रखते हैं और आप बहुत ही उत्सुक होते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, उसी बातों को लेकर आप उसे फिर से दोहरा सकते हैं, उसे आप स्मरण रख सकते हैं. So if you have no interest to remember what others have done to you, what wrong things others have done to you, you will tend to forget it. You cannot remember what happened to 1 hour back. यदि आपके दिल में यह रुचि और आपकी यह इच्छा है कि लोगों ने आपके साथ क्या बुराई किया, आप उसे याद रखने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और आप उसे भूलना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सहायक होगा कि आप उन्हें भूल पाएंगे.
that is what that can give tremendous unity and love for each other among us, because we don't remember anything wrong about the other person. और यही बात हमारे लिए सहायक रहे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और लय में हम एक दूसरे के साथ में रहने पाए, कि हम एक दूसरे के बुराइयों को स्मरण ना करें। I was thinking, what a great gospel it is. Only when you value the beauty and power of this gospel, you will love it, and we will thirst for it. और मैं इस सुसमाचार के विषय में सोच रहा था कि कितना अद्भुत और सुहावना है यह सुसमाचार की, यदि हम इसकी वास्तव में सामर्थ्य को जानेंगे और इसके अद्भुत कार्य को हम हमारे जीवन में जानेंगे, मूल्य जानेंगे। So it is so precious. That's why the David is telling prophetically how good and pleasant it is when God's people live together in unity, in harmony. इसलिए दाऊद उस भजन संहिता के शुरुआत में कहता है कि क्या ही सुहावना है और अद्भुत है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं। So we can have that become reality in our midst. तो यह हमारे लिए भी संभव है कि वह जो वचन है वह वास्तविकता हमारे जीवन में सच हो जाए। Amen. आमीन। थैंक यू। हमने सुना कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हमको सिखाता है कि हम किधर भी हमको रहेगा, हमारे फैमिली में, हमारे ऑफिस में, हम किधर भी जाएंगे तो हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमको क्रूस उठाना चाहिए। और हमने सुना अभी, और जीसस ने बोला, अगर लूक 9:23 में देखेंगे, जो भी मेरे पीछे चलना चाहता है वो क्रूस उठाएगा हर दिन। तो यीशु मसीह ने क्लियरली बोला है कि हमको क्रूस उठाना है। ये क्रूस उठाना, और क्रूस उठाने का मतलब हम खुद के इच्छाओं के लिए मर जाना। और ये तकलीफ लगता है अभी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुना कि कोई हमारा इंसल्ट करता है, सो वो पेन होता है हमारे जीवन में। तो यार मैं कैसे इसको मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ इसको मैं कुछ बोलूँ क्या। मैं खुद कितने बार फेस कर रहा हूँ घर पे कि बच्चे लोग इरिटेशन करते, कभी कभी बच्चे लोग सुनते नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि इनको मैं कुछ गुस्से में कुछ करूँ। तो मैं उस टाइम भी देखता हूँ परमेश्वर मुझे एनकरेज करते हैं कि उनको लव कर। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया, ना कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये हमको याद रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमको पहला प्रेम किया और इसीलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये चीज परमेश्वर ही हमारे अंदर डाल सकता है। और परमेश्वर जो हमारे अंदर प्रेम हमारे मन में डालेगा, हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं। और इससे पहले जैसे कि हमने सुना काफी वचन में, जैसे कि ब्रदर मैथ्यू ने एक वचन कोट किया कि जब तक एक गेहूं का दाना वो मरने जाता और मरने जाता, उसके बाद ही फल ला पाएगा। जब तक वो मरेगा नहीं, वो फल ला नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन वही सिखा रहा है कि जब तक हमारे जीवन में हम खुद के लिए मर नहीं जाए, खुद की इच्छाओं के लिए ना मर जाए, तो हम फल यीशु मसीह के लिए नहीं ला सकते। एक रोमियो 8:11 में ऐसे लिखा है, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु मरियों में से जिलाया तुम में वास करता है। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन बता रहे हैं, रोमियो 8:11 में ऐसे लिखा है कि जो आत्मा यीशु मसीह को मरियों में से जिलाया, मतलब यीशु मसीह मर गया था और परमेश्वर का आत्मा उसको जिलाया। एक प्रॉमिस है और लिखा है कि वो तुम्हारी मरणहार देह को, मतलब जब हम मर जाते, और लिखा है कि देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब हम मर जाते तो परमेश्वर का आत्मा हमको जिलाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने बोला जो मेरे लिए मरेगा उसके लिए एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब हम मर जाते हैं तो परमेश्वर फिर हमको जिलाता है, हमको उठाता है एक नया जीवन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा कोई इंसल्ट करता है, कोई हमसे नफरत करता है, हम हमेशा उसके साथ भलाई करते हैं, पर हम देखते हैं कि उसके बदले में हमको बुराई मिल रहा है, उसके बदले में इंसल्ट मिल रहा है, उसके बदले में तिरस्कार मिल रहा है, उसके बदले में हमको नुकसान हो रहा है हमारा फाइनेंशियल या कुछ भी। बट लेकिन हम क्या करेंगे,
हमको हमारा फ्लैश बोलेगा, हमारा थॉट बोलेगा कि अरे यार ये तो विजय तो बस हो गई, बस कर अभी। लेकिन परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर आएगा, जब हम खुद के लिए मर जाएगा, परमेश्वर पे क्या करूं, तो हम देखते कि परमेश्वर हमारे अंदर एक लाइफ, हमारे अंदर जीवन देते हैं ताकि उस भाई से प्रेम कर सके, उस भाई के साथ भलाई कर सके। मैं मेरा खुद का एक टेस्टिमनी में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं खुद ऐसा व्यक्ति से ऐसा फेस किया जो हमेशा मुझे हेट करता था और नफरत करता था मेरे साथ। हमेशा मेरे मेरे पास आकर कुछ ना कुछ वो बात ऐसा बोलता था, मुझे इंसल्ट करे, जो मुझे दुख पहुंचाए। तो मेरा मन में तो मैं उसको कुछ बोलता नहीं था सामने से, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। बट मेरा मन के अंदर एक बोलता ना, वो रियल एक क्रूस उठाना नहीं था, रियल खुद के लिए मरना नहीं था। मन में ऐसा था, उसके लिए एक ग्रम्बलिंग था, कंप्लेंट था कि प्रभु ये इस व्यक्ति के साथ मैं क्या करूं। मैं ऐसा सोचता था कि इस व्यक्ति के साथ कोई दूसरा उसके बुराई करे ताकि मेरे दिल में खुशी मिले। मैं सोचता था कि इसके अंदर कुछ बुराई हो ताकि मुझे खुशी मिले। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि इस भाई के साथ बुराई हो ताकि मुझे खुशी मिले, इसको पता चले कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया है, इसने मेरे साथ कितना गलत बात बोला है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया उस टाइम पे, परमेश्वर ने मुझे वचन दिलाया, विजय तूने इसको माफ नहीं किया, विजय तूने इसको माफ नहीं किया दिल से। और जो वचन में लिखा है कि जो अपने भाई को माफ नहीं करेगा दिल से, परमेश्वर उससे माफ नहीं करेगा। तो मैं उस टाइम पे एकदम शॉक हो गया, लॉर्ड प्लीज मुझे वैसा वो जीवन दे, मेरे अंदर नहीं है मैं माफ कर सकता हूँ, मेरे अंदर नहीं है कि मैं इसको प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ उसने बहुत सारा बुराई किया है, बहुत सारा इंसल्ट किया है। तो मैंने देखा कि परमेश्वर, मैं खुद के लिए मर गया, लॉर्ड प्लीज मुझे वो लाइफ दे। मैं देखता है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक नया जीवन डाल रहा है कि उस भाई से प्रेम कर सकूं, उस भाई के साथ में जाकर बैठकर चाय पी सकूं, उस भाई के साथ बैठकर मैं फेलोशिप कर सकूं, प्रेम कर सकूं। और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वो आज वो भाई मुझे सामने से फोन कर रहा है। और ये नहीं बोल रहे कि मैंने किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर, जैसा फिलिपियंस 2:13 में लिखा है कि परमेश्वर ही है वो जो हमारे अंदर काम करता है ताकि उसके उसके भले कामों को, उसके अच्छे कामों को हम कर सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा ही हम परमेश्वर से भाइयों से और हमारे फैमिली में, हमारे ऑफिस में अलग अलग भाई से हम प्रेम कर सकते हैं। जब हम जानेंगे कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, ये बहुत ही कठिन बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है, बट जब तकलीफ से गुजरेंगे, जब मर जाएंगे, तो परमेश्वर चाहते कि वो नया जीवन हमारे अंदर दे ताकि हम अपने शत्रु से प्रेम कर सके, हम शत्रु से लव कर सके, उसके साथ भलाई कर सके, और अपने शत्रुओं के साथ, शत्रु के लिए प्रेम ही नहीं बल्कि उसके लिए प्रार्थना कर सके, प्रभु उसके जीवन में उद्धार आने दे, उसके जीवन में यीशु मसीह को वो जानने दे। इस तरह से हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर ही हमारे अंदर काम कर सकता है। और मैंने देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो विश्वास योग्य वो कर सकता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, जो मैं इनकरेज कर रहे हैं, हमको याद दिला रहे कि यीशु मसीह के पीछे और हमारे भाइयों के बीच में हमको प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस तरह हमको प्रेम करना चाहिए। और इसी से हम जानेंगे, इसी से हम लोग जब देखेंगे हमको, इसी से वो लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के बच्चे, ये परमेश्वर के लोग हैं और ये परमेश्वर के डिसाइपल लोग हैं, यीशु के चेले लोग हैं। इसी से हम लोगों का पहचान होगा कि हम यीशु मसीह के चेले लोग हैं, ये एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। और ये परमेश्वर कर सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रॉमिस है, और ये हम अपने आप से, हमारा खुद का मेहनत से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से हम मांगेंगे, प्रभु मुझे दे ऐसे जीवन। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या, मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या, परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है। Amen. We have been talking about love, peace, harmony, and to have a fellowship with each other. So, Vipul, are you there? if we see, no, if nobody is, I'll continue. Continue. Yeah, please. So, you
you can have peace with everyone. Why not? We can have peace with everyone. But what's the use of having such kind of peace where there is no love? So I can say I have peace with this person, I have peace with that person, I have peace with so and so. But if I still have hatred, if I still have bitterness, if I still have unforgiveness, what kind of peace is this? Because there is no love in it. And the biggest commandment that God tells us is love. The biggest commandment in the Bible says is love. So without love, we can't have peace. And the biggest example of love is the sacrifice of Jesus. When we see him on the cross, when we look at that cross, seeing him, how he was hanged, what he went through, and how he suffered, even till death. What kind of love is that? A sacrificing love that he gave, because for us, we are sinners. But he showed his love by sacrificing himself. How much can we sacrifice ourselves? The question is that. If somebody tells us a bit, we are ready to become mad. We're ready to have little kind of bitterness. We have something unforgiveness. Maybe a small word. You know, it says in a pure, clean glass of water, you just put one drop of black ink, it makes the entire water black. So is this. A dot of bitterness can unclean your whole heart and your mind and can destroy the root of love that's inside you. So I don't want to read any scriptures. A lot of scriptures has been read. And the most important thing that we need to know the actual love, what it is. To have peace with somebody, first we need to have love. See, if you go according to the commandment God already gave Moses, love your neighbor. Jesus came and said, love your enemies. That's in Matthew 5:43 to 48. If you read it, it says about love your enemies. But what I say, if we have love, we have no enemies only, first of all. If there is love in us for others, so we see them as no enemies. It's not about how they see us. But if we have love for everyone, so we don't see them as enemies. How do we see them? As brothers and sisters. So it's very important to know, to have peace with everyone. It's not only peace, we need to have love first that creates peace in our heart for all. Amen.